Good morning, everyone. Welcome to EduBridge IAS. Am I audible? I hope I am clearly audible. Just give me yes. Okay. I hope you all are doing well. You hope are doing well. Now we are beginning a 45 days journey today. Okay. This journey will be very interesting. This journey will be very insightful, and this journey will be very helpful in your UPSC preparation. As you all know that for UPSC, the Indian polity and governance is the most important subject. Not because that the questions from this topic, the questions are asked, the number of those questions is high, but also the number of questions that are asked in this paper, they are doable. You can predict that these many percentage of questions you can do in the Indian polity and governance topic. Okay, so today's class will be more like an introductory class to prepare you for the journey that we'll be starting today. Okay, and first पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ how do I take the classes. अच्छा, first thing you tell me, how many of you are not comfortable with Hindi? How many of you are not comfortable with Hindi? Is there anyone who is not comfortable with Hindi? Because I must know the language in which you all should be comfortable. So we are working on the consensus. अगर कोई एक भी है तो the whole class will be in Hindi and English both, because most of the people in India, they get the clarity in Hindi itself. And talking about most of the people from North India. Okay, so there is no one who is having problem in Hindi. So we'll be keeping our class totally English, but sometimes explanation will be given in Hindi also for your better clarity. Okay, and at any moment in our class, you can ask the questions. You have all the powers to ask the questions. You have all the powers to be curious in our classes. ठीक है, हमारी क्लासेस में आपको कभी भी क्यूरियोसिटी हम नहीं रोकेंगे. You will be curious or you will be asking questions whether it is with respect to the topic, whether it is not with respect to the topic, but it is related to UPSC. ठीक है, and two words remember in this complete syllabus. These are the two words that you have to remember in the complete syllabus. First is trust and other is patience. First is trust and other is patience. I can promise you that 90% of the questions in the UPSC paper, I am not talking about test series. Test series में हो सकता है हम भी एक भी question ना कर पाए. I am talking about UPSC paper. That 90% of the questions in the UPSC class, in the question paper, you will be able to do if you take the classes properly and revise it. Okay? And that was very clear by the testimonials of the students that have taken classes from us. उन्होंने बार बार ये टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड करे हैं that yes, they were able to do those questions. Is it clear? चलिए, now we'll start with Indian polity and governance. बहुत सिंपल रहेगी जर्नी हमारी, सिंपल रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी. ठीक है, सिंपल रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी, और इसको पढ़ाई की तरह नहीं लेना है. Those who have studied with me, they understand this. Those who are new, they will understand within few days. कि इसको पढ़ाई की तरह नहीं लेना है. It is a personality development course that we are beginning today. ठीक है, whatever we are beginning today, it will be a personality development course, and you yourself will feel the difference after 45 days. You yourself will feel the difference कि हाँ, now the approach to study have changed a little bit. But change होगी, ये नहीं बोल रहे हम कि 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. It might change a little bit. Is it clear? चलिए, बहुत ज्ञान हो गया, पढ़ाई की बातें शुरू करते हैं. And जब जो मन करे, you can ask the questions. जो मन करे, you can ask the questions. You are most welcome to ask the questions. And whatever class we are having, the live classes, you will be getting the videos of it by the end of the day itself. So you'll be getting the videos. So if sometimes you are not able to attend the classes, do not worry. You'll get the videos of it. Okay. And I am 24/7 available for all your doubts. तो पहली क्लास में बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट में अगर बताएंगे कि हम अवेलेबल हैं तो फिर पूछोगे कब. तो फर्स्ट इनिशियली बता रहे हैं, you all have my contact. You can contact me anytime. Okay. Now let us begin. With the EduBridge IAS Indian Polity and Governance Foundation course. Now, what we'll be dealing in this topic?
we'll be dealing with Indian polity and governance. Indian polity and governance, ठीक है, it is provided in the syllabus. It is provided in the syllabus, and it is provided in which form, that we'll be seeing now. So it is what we'll be doing which is there in the syllabus. हमें हर चीज syllabus के हिसाब से चलनी है. So first I'll tell you the prelim syllabus. The prelim syllabus says the constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights issues, etc. This is there in the syllabus. These are the topics that are in the syllabus. इसके बाहर हम लोगों को कुछ नहीं करना है. We should not be anything other than these topics. We should be dealing with the constitution. We should be dealing with the constitution. We should be dealing with the political system, constitution, political system, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इश्यूज. थोड़ा सा हम लोग अब सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में समझना शुरू करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन of India only is in our syllabus for prelims, and in mains the comparison of constitution is also there. I am really sorry if something that I write is on the constitution, ठीक है, this is not what I am trying to do on purpose. ये हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए sometimes हमारे ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन के इमेज के ऊपर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसको कोई भी अगर रिस्पेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको गलत ना माने, ठीक है. तो कंपैरिजन इज इन द मेन सिलेबस. Otherwise, whatever we'll be dealing, it will be dealing only with the Constitution of India. Whatever we'll be dealing with the Constitution of India. Now the syllabus is political system. Political systems, it means they may ask questions how the democracy work, what is a democracy, how autocracy work, what is an autocracy, what is the difference between democracy and any other form of government, what is the type of parliamentary system we have, what is a presidential system, how parliamentary system is different from presidential system, what are the features of parliamentary system, what are the features of a constitutional government. Such questions will be asked from the political system. They will be asking questions from the topics within the political system, that is the functioning of the pillars executive, legislature, judiciary. They'll be asking you the questions from executive, legislature and judiciary. And within executive, they'll be asking the bodies, constitutional bodies, non-constitutional bodies, and bodies which are non-constitutional, non-statutory bodies. Okay? From legislature, they'll be asking the various legislatures like union legislature, or the legislature of the state. Clear? In judiciary, they will be asking the questions from the Supreme Court, High Court and the subordinate courts. Panchayati Raj system. Panchayati Raj system is the part of the constitution also. It is the part of the political system also. But it is specifically mentioned in the syllabus. It is specifically mentioned in the syllabus. It means it becomes very, very important for us to go through the Panchayati Raj. It means UPSC is telling you clearly. UPSC is telling you clearly that there will be a question from Panchayati Raj. Otherwise, if they have written constitution, it automatically means Panchayati Raj will be a part of it. It's very simple to understand this. But if they are writing Panchayati Raj, that means questions will be there. इसका example देते हैं. For example, someone will say that in your examination paper, you have to bring admit card and stationery. उसमें अंडरस्टूड है ना कि पेन या पेंसिल आपको ले जाना होगा, लेकिन यूपीएससी ने बोला है दैट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यू हैव टू टेक. इट मींस दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट. तो यूपीएससी ने बोला है कि पंचायती राज तो आपको पता ही होना चाहिए. एंड जनरली व्हाट स्टूडेंट्स डू, पंचायती राज तक पहुंचते पहुंचते उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है, क्योंकि पंचायती राज जब हम पढ़ते हैं तब होते हैं लास्ट लेग ऑफ द सिलेबस, और हिम्मत खत्म हो जाती है, इसीलिए मार्क्स कट जाते हैं, फिर बोलते हैं पॉलिटी बहुत टफ है. ठीक है, तो पंचायती राज पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में लिखा है. पब्लिक पॉलिसी, कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना, क्या स्कीम्स आती हैं पेपर में कि नहीं आती हैं. ये वाला बहुत जेन्युइन क्वेश्चन रहता है, क्या स्कीम्स आती हैं कि नहीं आती. स्कीम्स नहीं आती हैं, पब्लिक पॉलिसीज आती हैं. द पॉलिसीज दैट आर अफेक्टिंग द पीपल राइट नाउ, नॉट द पॉलिसीज जो कभी होंगी. ऐसे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आया था 1950s में. यूपीएससी अब तो नहीं पूछते उसको. क्यों? व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टिंग द पब्लिक पॉलिसी राइट नाउ. So it is not the schemes that are asked in the paper. It is the questions with respect to the public policy that are being asked. Do you understand the difference?
It is not with respect to the schemes, it is respect to the public policy. I'll give you an example. MP lad scheme, member of parliament local area development scheme, it is not from today, it is from a long time. Lekin this year UPSC asked the question because so many MPs they donated their MP lad fund for the COVID-19 pandemic. The UPSC asked this question because you need to know what is the purpose of MP lad scheme. So it is not the schemes that is as in the paper, it is the public policy. It is the public policy. Are we clear with this? And rights issues. Some people says फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है. देखिए सिलेबस में साफ लिखा है राइट्स से क्वेश्चन आएगा. मतलब इससे ज्यादा यूपीएससी और क्या बताए, मतलब यूपीएससी और इससे क्लियर क्या बताए कि राइट से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा. तो यू योरसेल्फ कैन सी राइट से क्वेश्चन है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो दिस इज द सिलेबस, दिस इज द प्रीलिम सिलेबस. मेन सिलेबस is nothing but an elaboration of this syllabus. Main syllabus is nothing but an elaboration of this syllabus. Some topics are extra in mains. Some topics are extra in mains. For example, Representation of People's Act is extra. For example, the role of civil services in democracy is extra. The role of pressure groups and the role of interest groups is extra. Only these topics are extra. Otherwise, the main syllabus is nothing but an elaboration of prelim syllabus. So we will study the syllabus of the prelims and mains elaborately. हमारा purpose रहेगा mains, जिसके साथ साथ while we are doing the mains topic, prelims तो आप easily निकाल लेंगे. ठीक है, अगर आपको हम पूरा पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो पार्लियामेंट से जो क्वेश्चन आएंगे बहुत इजीली कर लेंगे. प्लस जो सिर्फ मेंस में टॉपिक है, we'll be doing it at the last. Are we clear? We'll be having 5 days classes. Weekends will be off for your revision. We'll be having 5 days classes. Plus, in every class, we'll be doing questions from the topic that we are reading. हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ने का एप्लीकेशन भी देखेंगे. क्योंकि the most important thing that you need to understand is how many questions you can attempt. यही है सिंपल चीज. The important thing that you need to know is how many questions you can attempt. And when you are able to attempt the questions, फिर तो आपको कोई टेंशन होगी नहीं और आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी. Are we clear? कुछ कुछ समझ में आ रहा है इससे? चलिए. Now I'll show you the UPSC 2020 paper so that you have an idea that how the syllabus and the questions are coming. You have an idea how the syllabus and the questions are coming. So clarity आपको मिलेगी because I believe all of you are very fresh in this preparation. हम ये मान के चल रहे हैं that all of you are fresh, very fresh in this preparation. ठीक है? एंड जब भी जहां भी जो भी डाउट हो सब लोग पूछते रहेंगे. ठीक है, ये मत सोचिएगा कि डाउट पूछे कि ना पूछे. पूछ लो डाउट, उसके बाद बताएंगे. पहले देखिए हमारा सिंपल पर्पस रहता है, आप कुछ भी डाउट पूछेंगे हम पहले डाउट का आंसर देंगे. आई विल आंसर टू दैट क्वेश्चन. उससे क्या चीज होगी, पहला आपको ये तो पता लगेगा इनको पता था कि नहीं पता था. ठीक है, अदरवाइज आपने डाउट पूछा, हम बोले बेकार डाउट है तो आप बोलोगे पता नहीं है इसलिए ऐसे बोल दिया होगा. ठीक है, तो आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन. अगर पता होगा, नहीं पता होगा तो बोल देंगे नहीं पता है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ठीक है, देन आई विल टेल यू दैट सच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट और नॉट. इज इट क्लियर? डाउट पूछिए, धीरे धीरे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नाउ आई विल शो यू दिस ईयर्स पेपर सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया हाउ द सिलेबस इज आस्क्ड. चलिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या पॉलिटिकल सिस्टम सिलेबस में है? क्वेश्चन आया. कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में है? वेलफेयर स्टेट से क्वेश्चन आया? बिल्कुल आया. कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया. कॉन्स्टिट्यूशन के जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन आया. क्या पब्लिक पॉलिसी हमारे सिलेबस में है? तो ब्यूरोक्रेसी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन आया. प्रियम्बल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन. पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से इटसेल्फ. आधार यानी कि पब्लिक पॉलिसी, आधार इज द पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी राइट नाउ, तो क्वेश्चन इज फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी. राज्यसभा, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, अ क्वेश्चन. एमपी लेड स्कीम, पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन. फंडामेंटल राइट्स, आई टोल्ड यू क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, क्वेश्चन. आई टोल्ड यू सिलेबस से है
Political system, separation of judiciary from executive. Question. Budget, it means the part of the syllabus, and it is from the part of the public policy. FRBM Act, so much in use. Then constitutional government, directly they have asked the question from the political system. Fundamental rights, again fundamental rights and UDHR, public policy, legal services authorities. ठीक है? So what you understood by looking at this is that the questions that we are catering to are directly from the syllabus. The questions that we are catering to are directly from the syllabus. तो हम सिर्फ syllabus को पकड़ के चलेंगे, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी. ठीक है? सिंपल करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. Now look at the number of questions that are being asked from polity. Look at the number of questions that are being asked from polity. देखिए, in 2020 18 question, in 2020 18 questions, 18 कितने 18 क्वेश्चंस. देखिए 18 टू जा 36. कट ऑफ प्रेडिक्शन कितनी हो रही है इस बार? 95 plus minus 3. This is what we are predicting. Directly 36 questions polity say on, and out of these 36 questions you can 36 marks, you can very easily score 32 to 34 marks very easily. ठीक है? In 2019 13 questions, in 2018 13 questions, in 2017 23 question. It means the cutoff was 105.34 and from polity 46 marks. मतलब एक सब्जेक्ट से ही आप 50% मार्क्स ला सकते हैं. 2016 only 7 questions, then 13, 12, 16. So what do we see? That on an average 15 to 20 questions are being asked from polity. 15 to 20 questions are being asked from polity, and this is the only topic which is doable. आप कोई और सब्जेक्ट में गारंटी नहीं ले सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस हम कर देंगे. You cannot take guarantee. लेकिन इन पॉलिटी आप बोल सकते हैं दैट एटलीस्ट 70 to 80% तो हम कर ही लेंगे. 70 to 80% हम लोग कर लेंगे. ठीक है? और क्लास के एंड में आपको कॉन्फिडेंस हम दिलवा देंगे, ये आप टेंशन मत लेना. ये कॉन्फिडेंस आपको दिलाएंगे. उसके लिए रिवीजन आपको करना होगा. 2 चीजें, क्लास रेगुलरली आना है और रिवीजन करना है, बस. उसके अलावा कुछ नहीं करना. उसके अलावा कुछ नहीं करना. इज इट क्लियर? ओके. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुक्स कौन सी पढ़नी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुक सोर्सेस, विच बुक टू रीड. ठीक है? विच बुक टू रीड. तो कौन कौन सी बुक पढ़नी है सबको पता है. एक ही ग्रंथ है. ठीक है? एक ही ग्रंथ है इस प्रिपरेशन का. क्या है? एम लक्ष्मीकांत. ठीक है? देयर इज ओनली, दिस इज द एडवांटेज ऑफ पॉलिटी. और इसीलिए सबको लगता भी है पॉलिटी तो हम भी पढ़ लेंगे और पढ़ा लेंगे. ठीक है? अगर आपसे पूछा भी जाए ना कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, सबको लगता है हम पॉलिटी पढ़ा लेंगे. ठीक है? क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत ही तो पढ़नी है. लक्ष्मीकांत ही तो पढ़नी है ना. तो इसीलिए वी फील दैट पॉलिटी इज इजी. तो हमें कौन सी बुक पढ़नी है? लक्ष्मीकांत. लेकिन लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है, दैट आई विल टेल यू. हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत, दैट आई विल टेल यू. बिकॉज लक्ष्मीकांत पढ़ना इज नॉट वेरी इजी. लक्ष्मीकांत इज अ हैवी बुक. इट इज अ हैवी बुक. बहुत सिंपल नहीं है, लेकिन उसको अब पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताते हैं. पहले 6 to 12th NCERT if you are totally new. ठीक है? नॉट 12th 11th की पढ़िए, 12th की मत पढ़िए. ठीक है? 6 to 12th NCERT उसमें देखिए. आर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें पॉलिटिकल साइंस की नहीं पढ़नी है. इफ योर ऑप्शन इज नॉट पॉलिटिकल साइंस, वाली नहीं पढ़नी है. ठीक है? आपको 6 to 12th की पढ़नी है. जस्ट लाइक अ स्टोरी बुक, जस्ट लाइक अ स्टोरी बुक. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप बुक्स पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं ये भी हम आपको थोड़ा बताते हैं. ठीक है? हाउ टू रीड दोस बुक्स. आप जनरली जब बुक्स पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं? हाथ में पेन लेके, हाइलाइटर लेके, स्केच पेन लेके, है ना? ऐसे ही बैठते हैं. पेन, स्केच पेन, हाइलाइटर, ऐसे ही सब लोग बैठ के पढ़ते हैं ना. बताओ. आपको बुक रीडिंग भी समझनी पड़ेगी क्योंकि ऑल आर न्यू. देखिए
पेन विद बुक, हाँ बस यही नहीं करना है। आपकी बुक नहीं है अभी, आपकी बुक नहीं, नए फोन को आते ही उसमें स्क्रैचेस मार देते हैं क्या? वेट करते हैं ना थोड़े दिन का, वी वेट फॉर सम टाइम। बुक नहीं है, बस पढ़ना है आपको, बस अक्वेंटेंस, मतलब उनको बस थोड़ा सा नोन, गेट नोन टू द टॉपिक्स। अच्छा, पेंसिल प्लस कॉफी प्लस रीडिंग, अरे फोटो नहीं खींचनी, पढ़ना है। पेंसिल प्लस कॉफी प्लस रीडिंग तो फोटो खींचने के लिए हो गया कि कॉफी का मग है, चश्मा रखा हुआ है, बुक रखी हुई है ना? तो वो नहीं, देखिए किताब सिंपल, हाथ में लो, नो पेन, नो पेंसिल, जस्ट गो थ्रू द बुक, हैव अ अंडरस्टैंडिंग, अक्वेंटेंस, या दोस्ती बढ़ानी है, क्योंकि ये बुक आपके साथ टिल द टाइम यू गेट इनटू सर्विसेज तब तक रहने वाली है। लंबा रिश्ता है ना? लंबा रिश्ता, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं किसी से पहली मीटिंग में बोल दी, देखो ध्यान रख लो, तुम जो है सिर्फ हमसे बात करोगे, उसके अलावा किसी और से बात नहीं करोगे, और लाओ व्हाट्सएप का वो फोन का पासवर्ड दो, फेसबुक के पासवर्ड, ऐसा करते हो पहली मीटिंग में? नहीं ना, 2-4 मीटिंग का वेट करते हो ना, है ना? तो ऐसे ही बुक के साथ भी पहली मीटिंग में बस जानो क्या है। अब बुक में मान लीजिए कुछ ऐसा सिलेबस में टॉपिक ही नहीं है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड, तो आप क्यों उसके नोट्स बना रहे हैं? जस्ट गेट अक्वेंट विद द बुक्स। जब थोड़ा सा अक्वेंटेंस बुक से होगा तो यू योरसेल्फ विल फील कंफर्टेबल। ठीक है? थर्ड रीडिंग में पेन या पेंसिल उठाना शुरू करिए। फर्स्ट रीडिंग जस्ट गो थ्रू द बुक, आपका टारगेट होता है कि आप बुक जो है कंप्लीट अपनी आंखों से निकाल लें। दिस इज ओनली फॉर एनसीईआरटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लक्ष्मीकांत, आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटीज ओनली। दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग थ्रू एनसीईआरटीज। जब ये पढ़ लेंगे, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू एनसीईआरटीज प्लस क्लास के नोट्स, तो आपको पढ़ने ही है, वो तो अंडरस्टूड है, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? सो व्हेन यू आर थ्रू विद द एनसीईआरटीज, देन यू हैव टू गो विद एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत में सिर्फ आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ने हैं जो क्लास में कवर होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, इफ वी हैव कंप्लीटेड प्रियम्बल एज द टॉपिक, गो थ्रू प्रियम्बल फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। ये नहीं कि प्रियम्बल पढ़ लिया तो आगे सीधा फंडामेंटल राइट्स पे जंप कर गए। ठीक है? रीड साइड बाय साइड, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। एडिशन कोशिश करिए 6th एडिशन ही ले, कोशिश करिए यू परचेज द न्यू वन, बिकॉज देखिए नया एडिशन आता है इसलिए कि पुराने वाले में कुछ कमी थी। न्यू एडिशन इसीलिए आता है बिकॉज द ओल्ड एडिशन हैड समथिंग दैट यू वर नॉट एबल टू यूटिलाइज इन योर प्रिपरेशन, स्पेशली इन पंचायती राज। जीएसटी नहीं था पुराने एडिशन में, पंचायती राज में कुछ चेंजेस थे, नीति आयोग नहीं था, तो ये सब चीजें जो है नहीं थी, इसलिए गो फॉर द 6th एडिशन, द लेटेस्ट वन। 6th ही है ना लेटेस्ट, ग्रीन वाला जो है, द ग्रीन बुकलेट, दैट इज द लेटेस्ट वन, वो पढ़िए। एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। अब आपको दूसरा चीज दिमाग में आती है, व्हाट टू रीड इन करंट अफेयर्स। ठीक है? व्हाट टू रीड इन करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में हमें पढ़ना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, ठीक है? कौन सा न्यूज़पेपर? सबको पता है, द हिंदू। अगर आप हिंदू आपको कॉस्टली लग रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस। दीज आर द न्यूज़पेपर्स। क्या नहीं पढ़ना? हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या नहीं पढ़ना? दैट इज हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई मिरर, ये सब नहीं पढ़ना है। नॉट बिकॉज कि आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट दीज न्यूज़पेपर, बट एक्चुअली इन न्यूज़पेपर्स में आपको न्यूज ढूंढनी पड़ती है, आपको मिलती नहीं है न्यूज। इन हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें फ्रंट पेज पे न्यूज आएगी, दो एनीथिंग इंपॉर्टेंट मे बी गोइंग ऑन इन द कंट्री, इन टाइम्स ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन आएगी दैट वाज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, because this is what most of the people wants to know, what is going on in the social life. But in this preparation you need to know what is going on in the political life. ठीक है? तो we need to read the newspapers, we need to read the newspapers that are important for our preparation. The Hindu and Indian Express, and I will personally suggest The Hindu. The reason is not because I find it good, but because most of the aspirants are reading The Hindu. Most of the aspirants are reading The Hindu, and to remain in the competition you need to do what your competitor is also doing. So you go for The Hindu because it will help you to have better understanding of the topics. प्लस ये न्यूज़पेपर पढ़ना कब समझ में आएगा? जब एम लक्ष्मीकांत तक हम पहुंच जाएंगे।
when you know what is preamble, तभी तो न्यूज़पेपर में अगर कुछ preamble से related news आएगी, you can able to understand that. तो first focus NCERTs, then our syllabus, and then newspaper. Then newspaper. Why? Because generally what we believe that current affairs are asked in the paper. What we believe that current affairs are asked in the paper. But actually it is not the current affairs that are being asked, it is the dynamic topics with respect to the syllabus that are being asked. So firstly, you need to get accustomed with the syllabus and then only you can go through the newspaper. Are we clear? Sources you understand? Read NCERTs, go with the classes, then read M. Lakshmikant with that and the current affairs. हमारी क्लास में whatever we are reading, आपको जिस जैसे for example, if we are covering a topic on 10th of October, everything will be updated till that date. मतलब जो आज हम पढ़ाएंगे वो आज की तारीख तक अपडेटेड रहेगा. उसके बाद की अपडेशन you yourself have to do. I'll make you empowered to this extent कि when the classes are over, then also you will be able to अपडेट योरसेल्फ. डीडी बासु और पीएम बख्शी यूज हो सकती है ऑप्शनल के लिए, जीएस के लिए बिल्कुल नहीं. जीएस के लिए डू नॉट गो फॉर डीडी बासु एंड, और पीएम बख्शी तो बुक नहीं है. पीएम बख्शी इज बेयर कॉन्स्टिट्यूशन. पीएम बख्शी इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन, और इट इज नथिंग बट द बेयर कॉन्स्टिट्यूशन. पीएम बख्शी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है एग्जैक्टली वो है. एंड यूपीएससी इज the general studies paper, it is not a law exam. Had you been preparing for judicial services, I would have suggested you to read PM Bakshi. अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है. बेयर एक्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है. So DD Vasu, if you have, it is a good read, but read it when you are actually aware about the syllabus, not right now. Not right now. जब नॉवल पढ़ना शुरू करते हैं, चेतन भगत से शुरू करते हैं ना, तो पहले बेसिक्स एनसीईआरटीज पढ़ो, फिर समझ में आएगा अरे ये क्या पढ़ रहे थे हम आजकल. अब थोड़ा हाई लेवल चलते हैं तो फिर तभी तो. अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप को आदत पड़ जाती है डैन ब्राउन पढ़ने की, तो आप क्या चेतन भगत पढ़ोगे? सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ोगे. तो वही बात है. तो एक बार जब डीडी बासु तक पहुंच जाओ फिर समझोगे कि हाँ क्या डिफरेंस था. ओके, अभी तक कोई डाउट? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी बेसिक डाउट्स यू हैव बिफोर वी बिगिन विद द सिलेबस. एनी बेसिक डाउट्स यू हैव? एनसीईआरटी नोट्स नहीं, एनसीईआरटी नोट्स किसी चीज के नहीं बनाने. अभी देखिए नोट्स का पर्पस क्या होता है, थोड़ा सा हम ये आपको बताते हैं. अच्छा, व्हाई डू वी मेक नोट्स? सो दैट वी विल हैव अ क्विक रिवीजन. वी मेक नोट्स टू हैव अ क्विक रिवीजन. रिवीजन ऑफ व्हाट? दैट वी आर फाइनली ट्राइंग टू इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट. हम नोट्स इसीलिए बताते हैं सो दैट वी कैन हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ समथिंग दैट वी आर फाइनली ट्राइंग टू एग्जीक्यूट. तो पहले we should know what we are trying to execute, then only you should make notes. Note making is something that finally these are the pages that I'll be reading. Finally these are the pages that I'll be reading, and your notes should be as succinct, as crisp, as to the point as possible. मतलब एक पेज में अगर आप पूरा प्रेसिडेंट का ऑफिस कवर कर ले रहे हैं, वो नोट्स होते हैं, ठीक है. एनसीईआरटी के नोट्स जो है आप बनाएंगे लास्ट में, जब एक पेज में आपकी पूरी 6th की एनसीईआरटी आ जाएगी, पूरी 12th की एनसीईआरटी आ जाएगी. 1 पेज 1 एनसीईआरटी. दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग नोट्स. नोट्स और तब बनाते हैं जब आपको फाइनली पता बोलना क्या है या लिखना क्या है, उस चीज के नोट्स, उस चीज के. फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा सब लोगों का, ठीक है, सब लोग स्पीच प्रिपेयर करेंगे, ऐसे फोटो खिंचवाएंगे वी करके, है ना. तो इसके लिए हम लोग स्पीच प्रिपेयर करेंगे. अब वो स्पीच 50 बार लिखेंगे, फिर तो लास्ट में जो बोलना है वो वाली स्पीच लिखी जाएगी. तो लास्ट में जो कवर हो गया उसके नोट्स बनाएंगे, जिससे रिवीजन कर सके और वहां पर एग्जीक्यूट कर सके. नोट्स बनाना भी एक आर्ट है, वो पहले उस लेवल पे रीच करें फिर नोट्स बनाए. एंड जनरली एक बात और बहुत चीज समझिएगा, नोट मेकिंग इज नॉट योर प्रिपरेशन. अगर आप 4 घंटे नोट्स बना रहे हैं, आप कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं. आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप जो सामने लिखा उसको अपनी कॉपी में लिख रहे हैं बस.
बस आप लिख रहे हैं, वो कोई दिमाग का काम नहीं है। इससे बेटर है हाईलाइट करिए और लास्ट में जो जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट हटाइए और जो जो इंपॉर्टेंट उसको कीवर्ड्स लिखिए। इज इट क्लियर? समझ में आया है? एनी अदर बेसिक डाउट दैट यू हैव, बेसिक रिलेटेड टू द प्रिपरेशन और एनीथिंग? बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे ही ध्यान देंगे, क्वालिटी पे धीरे धीरे चलेंगे। आज वीकेंड पे रख रहे हैं, फिर तो वीकेंड्स आपके ऑफ रहा करेंगे, जिससे आप लोग रिवीजन करें। वीकडेज पे रहेगा। सर न्यूज़पेपर रीड कैसे करना, बताएंगे। एनसीईआरटी रीड कैसे करनी है? देखिए एनसीईआरटी अभी बस पहले आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, जैसे पढ़ते थे ना बचपन में चंपक। एनसीईआरटी इसी तरह तो इंटरेस्टिंग बनाई हुई है, उसमें भी तो दो उन्होंने बनाए हुए हैं, उन्होंने दो अब कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं, बूझो और पहेली। टू कैरेक्टर्स आर देयर इन एनसीईआरटीज, तो रीड दोस कैरेक्टर्स बहुत सिंपल तरीके से। एंड व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन, व्हेन यू गेट कंफर्टेबल विद दोस टॉपिक्स, तब उसको आगे हाई लेवल पे चलिए, क्योंकि रिपीटिशन है। 6th की एनसीईआरटी सेम एज 8th एनसीईआरटी, 8th एनसीईआरटी सेम एज 10th एनसीईआरटी, 7th इज सेम एज 9th। रिपीटिशन है, बस धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, तो आप लोग समझेंगे। पीपल आल्सो टेल about going through previous question, how very very relevant, very relevant. Previous year questions are like the most important thing in this preparation. आपको पता रहेगा कि क्या यहां से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ टेलिंग। फॉर एग्जाम्पल if we take polity itself, so many students they invest their time in reading about the subordinate courts, और कहते समझ में नहीं आता है, सदर निजामत, सदर दीवानी क्या होता है, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड अगर हम पेपर देखेंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, तो क्यों उसमें इतना दिमाग लगाना है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाएगा उधर जाना है कि नहीं जाना है। एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर लाइक द गूगल मैप्स। जब कहीं जाना तो मैप देख के जाते हैं ना हम लोग, तो बस यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कि मैप है, वहां से जाना है कि नहीं जाना है, कैसा रास्ता है, बस ये आइडेंटिफाई करना है। इज इट क्लियर? एनी अदर डाउट यू हैव? एनसीईआरटी फर्स्ट रीडिंग समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़ लो, आपकी अपनी किताब है, हमने खरीदी हुई है, दोबारा पढ़ो, जान पहचान बढ़ेगी। अरे पहली मीटिंग में कोई समझ में नहीं आया, क्या करेंगे, दूसरे दोबारा मिलेंगे। एनसीईआरटीज आपके लिए एक ऐसे पार्टनर है जो आपके, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक वो आपके साथ रहने वाली हैं। तो पहली बार में कैसे छोड़ दोगे पहचान के? जानो पहचानो, ठीक है। एनसीईआरटीज आर योर पार्टनर टिल द टाइम यू आर गेटिंग इनटू द सर्विसेज। और सब लोग, सवाल ये है सब लोग क्यों कहते हैं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? अब आप लोगों को बार बार एनसीईआरटी क्यों एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा है जो लक्ष्मीकांत में नहीं होगा? क्या लगता है आपको, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा होगा जो लक्ष्मीकांत में नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज डेडिकेटेड टू द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। Lakshmikant is dedicated to civil services preparation, but NCERTs are for school students. And yes, NCERT सिर्फ आप इसलिए पढ़ते हैं so that you know how to write your answers in certain language. For the flow and lucidity of language, you read NCERTs. कि how to represent something in a simple language. ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट समथिंग इन सिंपल लैंग्वेज। अब फाउंडेशन होने से छोड़ दो, हम आपको ऐसी फाउंडेशन बनाएंगे कि पॉलिटी में तो फुल कॉन्फिडेंस में रहोगे तुम। पॉलिटी में तो कोई अगर पूछेगा सवाल तो लगे अरे पूछो तुम, न्यूज़पेपर कंटेंट खत्म होने बाद ही शुरू करने। हाँ, अब आप समझ रहे हो, न्यूज़पेपर में पढ़ के भी समझ में क्या आएगा आप लोगों को? अभी न्यूज़पेपर पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, अब आपको क्या पता जीएसटी, आपको जीएसटी तो बस यही पता है कि हम कुछ खरीद के लाते हैं उस पर जीएसटी देना होता है, इतना ही पता है ना। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरा जीएसटी का सिस्टम समझेंगे। अगर न्यूज में था वेरी रिसेंटली दैट क्वेश्चन आर इज नॉट देयर,
क्वेश्चन आर इज नॉट देयर। अब आपको पता तो हो क्वेश्चन आर क्या है, क्वेश्चन आर पहले समझिए, देन ओनली यू कैन हैव एनी व्यूज अबाउट इट। आर वी क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा हाँ चलिए, थैंक यू अदनान। चलो अब शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा ये देखिए, इनिशियल ज्ञान जरूरी होता है, इनिशियल, और बाकी थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, हाँ तुम लोग कर सकते हो, तुम में है हीरो, ये सब चीजें मन में बांध के बैठना, हाँ तुम लोग सब कर सकते हो, ठीक है। और और क्या थोड़ा बहुत बताते हैं, हाँ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, ठीक है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, ये सब चीजें भी समझिए। हाँ और एक चीज है, हम आपको कभी सजेस्ट नहीं करते 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए। आई ओनली सजेस्ट यू वन थिंग, बी continuous in your preparation, be continuous in your preparation. What you are reading today, it should not be procrastinated for tomorrow. आज की क्लास में जो हुआ है, अगर आज ही आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको कंफर्टेबल रहेगा। बस दिस इज द ओनली वन थिंग यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड। उसके अलावा धीरे धीरे आपको जब खुद से मजा आने लग जाएगा, आप लोग ऑटोमेटिकली अपना टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। हमारी एक प्रायोरिटी है दैट टू गेन योर इंटरेस्ट इन द टॉपिक। द मोमेंट योर इंटरेस्ट इज गेन्ड, ऑटोमेटिकली योर रीडिंग आवर्स विल इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नॉवेल पढ़ना शुरू करते, पहले दिन पढ़ते हैं आधा घंटे 2 घंटे, और जब उसमें इंटरेस्ट बनने लग जाता है कि हाँ एक्स जो है वाई से अब मिलने जा रहे हैं, अब क्या वाई का क्या जवाब होगा, तो तब उस दिन तो पूरी रात बैठ के पढ़ते हैं वो नॉवेल। ऐसे ही हमारी प्रिपरेशन है, एक बार इंटरेस्ट बस गेन करना है। द मोमेंट वी हैव गेन द इंटरेस्ट, द मोमेंट वी हैव गैदर्ड द इंटरेस्ट, उसके बाद सब ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट समझते हैं आप लोग, अंडरस्टैंड, ऑटो पायलट मोड। प्रिपरेशन भी ऐसे ही है, जब एक बार मजा आने लग गया, अच्छा प्रेसिडेंशियल ऑफिस में ये चीजें हैं, तो आप गेन करेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो आप खुद से पढ़ेंगे उसको। जब यूएस के पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इंडिया और यूएस में क्या डिफरेंस है, उसको कंपैरिजन करेंगे। फिर इंडिया देखेंगे, अगर इंडिया यूके के जैसा है तो देन यू विल ट्राई टू यू रीड अबाउट द यूके प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ऑटोमेटिकली योर रीडिंग आवर्स विल इंक्रीज। जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता रहेगा, अपने आप रीडिंग आवर्स बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आज हम बहुत जोश में, आज हमें लगेगा बहुत पढ़ लें, लेकिन है ही नहीं पढ़ने के लिए कुछ, क्या पढ़ोगे? सिलेबस अपने आप बढ़ता रहेगा, और बाय द एंड ऑफ द क्लासेस आपके इतना सिलेबस होगा तो आप कहेंगे की करे सिलेबस खत्म ही नहीं होता है, ठीक है, अब यही निकलेगा आपकी आवाज। और यूपीएससी में सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है, स्पेशली जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है, उनका सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप लोगों अरे यार नीति आयोग तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। सेलेक्ट हो गए, मन में दिमाग में फिर भी ये चल रहा है कि यार नीति आयोग तो पढ़ा नहीं, अगले अटेम्प्ट देना होता तो इस बार नीति आयोग पढ़ के जाते। सर्विस में जाने के बाद भी ये फीलिंग आएगी आपको, तो डू नॉट वरी अबाउट दिस, ओके। चलिए विल बिगिन विथ पॉलिटी एंड वॉट एवर विल बी रीडिंग, बहुत बेसिक चलेंगे हम लोग, इतना बेसिक चलेंगे कि आप लोगों को धीरे से ऊपर तक उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहले सबसे पहला सवाल हर चीज पॉलिटी पढ़ना। पॉलिटी होता क्या है? When we have to read polity, we must know what is polity. है क्या पॉलिटी? तो अब क्या है, एक आइडेंटिफाइबल पॉलिटिकल एंटिटी होती है पॉलिटी। मतलब हर एरिया में आप जिस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द बेसिस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी। It means there is a group that are having collective identity. For example, I will not take the example of the highest level, residential welfare association. Residential welfare association, what does it have? It has a group of people. It has a group of people with a collective identity. It means those people who are living in that residential area. There will be the people who are living in that residential area. First thing. Second thing, they're organized in some form in a institutionalized social relations. यानी कि जो वहां के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, दैट इज आरडब्ल्यूए, collective identity of residents. They institutionalize themselves, and when they have capacity to mobilize resources, then it is called as a polity. Then it is called as a polity. It means an entity जहां पर
कलेक्टिव लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है एंड दे हैव द कैपेसिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटी। ठीक है, नाउ इंडियन पॉलिटी क्या है? वेयर द पीपल दे हैव अ पॉलिटिकल एंटिटी where the collective identity is of Indian citizens, where they have institutionalized themselves in a form of parliamentary system, and they have a capacity to mobilize resources through taxation or other means of financial resources. That is the meaning of Indian polity. समझ में आया? Indian polity एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी आइडेंटिटी कलेक्टिव है, उसको वो इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, दे हैव अ कैपेसिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी। और व्हेन दिस इंडियन पॉलिटी इज फंक्शनिंग, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नेंस। क्या है, क्यों है एंड क्या करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एंड ये काम किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So this is how the syllabus will revolve around these three things, around the Indian polity and governance, which is based upon the Constitution of India. Is it clear? A polity is an identifiable political entity, any group of people who have collective identity, who are organized by some form of institutionalized relations and have a capacity to mobilize resources. This is polity. Okay, why I am giving you this definition? Because if you go through the previous year papers, the UPSC is asking very simple questions, that what is constitutional government, and what if they ask next year what is polity? What is polity? तो आप बोलोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, सब पढ़ा दिया, पॉलिटी क्या है वो तो पढ़ा ही नहीं, मन में हमारे लिए बीप बीप निकालोगे। ठीक है, इसीलिए नो बीप बीप, ओनली कंसेप्चुअल स्टडीज। ओके, you understand what is polity? Now we will understand what is governance. What is governance? बहुत सुना है, वर्ड सुना है हमने गवर्नेंस, गवर्नेंस बहुत बार वर्ड सुना है। तो यू जस्ट लुक एट द डायग्राम और लुक एट द इमेज और आपको गवर्नेंस बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जस्ट लुक एट द इमेज एंड यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस is a system where the legislatures make policies and strategies by using financing and organization to provide certain outcomes. Where the legislatures make policies with certain strategy of finance and organization and to get some outcomes. That is governance. Governance means polity जब एक strategy बनाती है through financing and organization, that is governance. Simply, very simple. जो हमने polity देखा, उसके पास कैपेसिटी है मोबिलाइज करने की रिसोर्सेज। एक पॉलिटी है, मोबिलाइज करने की रिसोर्सेज है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब वो रिसोर्सेज का करेंगे क्या? उस रिसोर्सेज को क्या करेंगे? दो काम कर सकते हैं, तो भंडारा कर दें। आरडब्ल्यू के पास रिसोर्स है, हम आरडब्ल्यू का एग्जांपल लेंगे बिकॉज यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट डायरेक्टली। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन आपने डायरेक्टली देखे होंगे, तो वहां पे क्या है, मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज आ गए तो क्या करोगे इन रिसोर्सेज का? उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और स्ट्रैटेजी के लिए आपको हो सकता है फाइनेंसेस कहीं और से भी गैदर करने पड़े या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़े, और उन सबको देखने के लिए एक आउटकम जब बनाना होता है, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नेंस। दैट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज established by the Indian polity or any other polity, that is governance. Are we clear? Are we clear? Yes, no? वेरी गुड। अब डेफिनेशन, बुक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है देखिए। गवर्नेंस हैज बीन डिफाइंड टू रेफर टू स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस दैट आर डिजाइन्ड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, स्टेबिलिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, एम्पावरमेंट एंड ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन। वही जो हमने यहाँ डायग्राम में बनाया, वही इन्होंने बहुत सारी हैवी टर्म्स में बता दी। ठीक है, जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आपका सिलेबस खत्म होगा तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी लगा ये क्या क्या बोल दिया। तो उन्होंने सिंपली यही बोला है कि जो काम कर रहे हो अच्छे से करो, बता के करो, सबके लिए करो, सबका बेनिफिट हो और सबको पार्टिसिपेट करवा के करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। अब गवर्नेंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वैल्यूज, रूल्स
of the game through which public affairs are managed in a manner that is transparent, participatory, inclusive and responsive. So governance therefore can be subtle and may not be easily observable. ठीक है, तो easily observable नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता कहां पर गवर्नेंस हो रही है, आपको पता ही नहीं कहां पर गवर्नेंस हो रही है. इसका एक एग्जांपल देते हैं. आपने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स देखे हैं, ठीक है, अच्छा वो पॉलिटिकल अफेयर है कि पब्लिक अफेयर है, बताइए. अभी दिवाली सेलिब्रेशंस होंगे, पॉलिटिकल अफेयर है कि पब्लिक अफेयर है? पब्लिक अफेयर है, ठीक है, वेरी गुड. अब वो पब्लिक अफेयर कैसे हमें कहां कहां दिखता है, हमें अब समझ में आया है कि गाइडलाइंस. अब समझिए, आज तक कभी सोचा था कि अच्छा गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आ सकती है दिवाली के लिए? पहले सोचा ही नहीं था हमने, लगता था हाँ ठीक है जैसे हम तो अपनी मर्जी से करेंगे. नाउ यू नो दैट इट इज ऑल्सो अ पब्लिक पॉलिसी. पहले हमें लगता था फेस्टिवल्स आर अ प्राइवेट अफेयर, बट देयर वाज आल्सो गवर्नेंस इन्वॉल्व. क्योंकि अगर कोई फेस्टिवल है वेयर द सो मेनी पीपल आर टुगेदर, वेयर द सो मेनी पीपल आर कलेक्टिवली प्रेजेंट, तो वहां पर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इज नीडेड. क्योंकि कहीं अगर भीड़ इकट्ठी हो रही है, इफ अनफॉर्चुनेटली मिस हैपनिंग हैपेंस, द लोकल एरिया, लोकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इसलिए आप खुद देख एक चीज नोटिस करिएगा, दिवाली है, दिवाली है उस दिन जो पुलिस पर्सनल्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है वो ज्यादा एक्टिव रहती हैं. क्यों? पर दिवाली है, दिवाली में क्या एक्टिव रहने की जरूरत? दिवाली में सबकी छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन पीपल आर मोर एक्टिव, पीपल आर मोर एक्टिव. आर वी क्लियर? तो इट इज अ पब्लिक अफेयर विच इज सटल एंड मे नॉट बी इजिली ऑब्जर्वेबल. तो आप हो सकता है गवर्नेंस हर जगह ना देख पाए, ठीक है. सो इन अ ब्रॉड सेंस इट इज अबाउट the culture and institutional environment in which citizens and stakeholders interact among themselves and participate in public affairs. It is more than the organs of the government. It is more than the organs of the government. ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया है? बहुत सिंपल सिंपल है. अब ये बताओ, ये तो हमने सुना होगा, सब लोग सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं. इंडियन पॉलिटी समझ गए, गवर्नेंस समझ गए, गवर्नमेंट क्या होती है? व्हाट इज गवर्नमेंट? व्हाट इज गवर्नमेंट? ये बताइए. प्रोसेस, ठीक है, रूलिंग पार्टी, ओके. अब मान लो कोई ऐसी कंट्री जहां पॉलिटिकल पार्टी ना हो, तो वहां पे गवर्नमेंट होगी कि नहीं होगी? तो पॉलिटिकल पार्टी तो मतलब ही नहीं है, तो रूलिंग पार्टी तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर. व्हाट इज गवर्नमेंट? अब देखिए, इंडियन पॉलिटी आप समझे, कुछ काम करेंगे, गवर्नेंस है काम क्या करना है. अरे काम करेगा कौन? मशीनरी फॉर गवर्नेंस, दैट इज द गवर्नमेंट. सिंपल. मशीनरी, मशीनरी for governance, it is the government. Government is a group of people who rule or run the administration of the country. In other words, it may be said that a government is the body of representative that governs and controls the state at a given time. Government is the medium through which power of the state is employed. Government is the medium through which the power of the state is employed. Is it clear? समझ में आया? सिंपल चीज, जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमने प्रिपेयर करी है उसमें काम कैसे होगा, वो कौन करेगा, दैट इज गवर्नमेंट. पीयूष, नहीं समझ में आया आपको? पीयूष नहीं आया समझ में? चलो, चलिए बताते हैं अभी. ठीक है, अभी बताते हैं.
हम वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब हम लोगों को वी ऑल हैव आवर प्राइवेट अफेयर्स, पर्सनल लाइफ है हम लोगों की, पर्सनल लाइफ हम लोगों की। सब लोगों को पर्सनल लाइफ में कंफर्टेबल होने के लिए, पर्सनल लाइफ में हम सबका घर है यहाँ पर, तो क्या हम लोगों की चिंता नहीं होगी हमारे घर सेफ रहे कि ना रहे? हम सबको चिंता रहेगी। तो क्या हमें लगता है कि हमारे घर में सेफ्टी मिलनी चाहिए हमको? क्योंकि इफ देयर आर 9 हाउसेस, हम लोगों के घर में सब बहुत अच्छे से है, तो हो सकता है कोई बाहर से इन्वेजन हो जाए, समवन कैन कम फ्रॉम आउटसाइड। क्या हमें बेटर फैसिलिटीज नहीं चाहिए? बेटर फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ, लेट अस से, स्ट्रीट लाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, ये तो हमें चाहिए, ये तो हमें चाहिए। एंड व्हेन वी कॉल दिस प्लेस एज ए, तो अब इस ए में एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी नीड, what we need will be called as governance. अगर ये एक कंट्री है एंड दिस इज अ पब्लिक अफेयर, तो एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी नीड, इट मींस द पब्लिक पॉलिसीज, एप्लीकेशन दैट विल बी कॉल्ड एज गवर्नेंस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज विल बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट। और हु विल बी अप्लाइंग दोस पॉलिसीज? द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है, दैट विल बी अप्लाइंग दोस पॉलिसीज, ठीक है, दैट विल बी अप्लाइंग आवर पॉलिसी। और इसको सिंपल बताते हैं। आपने एक चिट्ठी लिखी, ठीक है, आपने एक चिट्ठी लिखी, यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड। ये तो सबने लिखा होगा बचपन में, एग्जाम में तो लिखा ही होगा, दोस्त को लिखा ना लिखा होगा कभी, ठीक है। अब यू हैव रिटन दैट लेटर, वो लेटर कैसी, किस फॉर्मेट में होगा? देयर विल बी अ फॉर्मेट, उसमें एक एड्रेस भी होगा, ठीक है। यू विल बी सेंडिंग इट टू अ प्रोसेस, ये सब आपको बता दिया है कि आपको ये सब चीजें सेंड करना है, आपको पोस्ट बॉक्स में डालना है। यू हैव सेंट इट टू द पोस्ट ऑफिस, ये आपको पता होता है? यस, नो, यू ऑल नो दिस। अब पोस्ट ऑफिस से लेके कौन जाएंगे? पोस्टमैन इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफिस जो बनाया है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इट मींस ये सब जो चीजें बताई हैं, उन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी होती है, whatever you have made, there should be a machinery for that, है ना? whatever you have made, there should be a machinery for that, and that machinery is called as government. That machinery is called as government. Machinery is called as government. Are we clear? अब तो समझ में आ गया गवर्नमेंट क्या होता है? अभी तक तो कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब गवर्नमेंट बहुत टाइप की हो सकती है, कोई भी मशीनरी है। अच्छा, आपको बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल वी बोथ आर हैविंग दिस क्लास, ठीक है, वी ऑल आर हैविंग दिस क्लास। अब वो क्लास आप कैसे भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप पर कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, मोबाइल पे कर सकते हैं, आप टैबलेट पे कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, है ना? ये आपकी चॉइस है, वो मशीनरी आपकी है। बस आपका पर्पस क्या है? आपने एक चीज डिसाइड करी कि वी हैव टू टेक द क्लास, दैट इज व्हाट इज योर चॉइस। अब वो किसी भी मशीनरी से हो सकती है। सिमिलरली यू हैव डिसाइडेड कि आपको गवर्नेंस चाहिए, यू नीड पब्लिक पॉलिसीज। नाउ देयर कैन बी एनी वे टू हैव दैट पब्लिक पॉलिसी, एनी वे, आपकी कोई भी चॉइस हो सकती है। अब आप चाहे वो डेमोक्रेसी के थ्रू बनाओ, चाहे कोई राजा चूज करो, चाहे कोई रानी चूज करो, चाहे कोई सोल्जर चूज करो, चाहे कोई मिलिट्री चूज करो, चाहे आप किसी को भी चूज करो, ये आपकी चॉइस है। तो गवर्नमेंट
काफी टाइप की हो सकते हैं. इट मींस अ गवर्नमेंट कैन आइदर बी डेमोक्रेटिक, द गवर्नमेंट कैन आइदर बी डेमोक्रेटिक, the government can either be autocratic, the government can either be monarchy, कुछ भी हो सकता है. तो there are different forms of government, there are different forms of government, machinery can be anything. अब हम इंडिया में हैं, हम इंडिया में हैं, तो हम गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट वी यूज द वर्ड डेमोक्रेटिक. मतलब इंडिया में गवर्नमेंट का मतलब होता है अब मशीनरी दैट इज चूजन बाय पीपल. अब जब भी हम इन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये वर्ड यूज करेंगे गवर्नमेंट, आपके दिमाग में सीधा क्या आएगा, दैट अ मशीनरी दैट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. ठीक है. इंडिया में गवर्नमेंट के पार्ट कौन कौन होते हैं? इंडिया में गवर्नमेंट के पार्ट कौन कौन होते हैं बताइए. गवर्नमेंट के पार्ट कौन कौन होते हैं? लेजिस्लेचर, हाँ 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 हाँ, ना ना ना, यही यही इसीलिए तो बेसिक पे चलना है. राज्यसभा, लोकसभा. अच्छा, क्या राहुल गांधी लेजिस्लेचर का पार्ट है? तो आप ही कह रहे हो, आप ही तो कह रहे हो लोकसभा राज्यसभा. अरे जो हमने इलेक्ट करा है वही वही तो गवर्नमेंट बनते हैं. अब अभी किसकी सरकार चल रही है? अभी किसकी सरकार चल रही है? मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी. अभी जो है, जो इलेक्शंस जीते 2019 में, उन्हीं की गवर्नमेंट है. तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द रूलिंग पार्टी. तो इट इज रिप्रेजेंटेड. हम क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में गवर्नमेंट मींस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. इन इंडिया वी मींस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. अब देखिए, अब इस चीज को समझिए. जब हम इंडिया में बात करते हैं तो उनका एक पब्लिक मैंडेट होता है, वेल डिफाइंड टर्म होती है ना, एंड सक्सेसिव टर्म में उसके बाद पीपल मे बी इलेक्टेड अगेन, दे कैन बी इलेक्टेड अगेन. अब वो गुड और बैड किस चीज पे आइडेंटिफाई होती है? हाउ दे कैन बी आइडेंटिफाइड गुड और बैड? अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर अच्छा काम करेंगे तो दे कैन कम बैक टू पावर, अच्छा काम करेंगे तो दे कैन कम बैक टू पावर. आर वी क्लियर? समझ में आ गया? अब आपको समझ में आया व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज गवर्नेंस एंड व्हाट इज गवर्नमेंट. इज दिस ऑल क्लियर टू यू? इज दिस ऑल क्लियर टू यू? अभी तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है अभी तक? यस, नो? नो. वेरी गुड. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? What is constitution? Tell me, what do you think is the constitution? What do you think is the constitution? Largest legislating government, basic government to govern a country. Very good. देखिए, हम आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं सो दैट आप लोगों की आदत बने, थोड़ा सा बोलने की, सोचने की, लिखने की आदत बने, सो दैट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है विच यू डू नॉट नो, यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई एंड आंसर फॉर दैट. You can able to identify and answer for that. Okay? इसीलिए आई आस्क यू क्वेश्चन, क्योंकि हमको तो पता ही है, क्योंकि आप लोग सोचोगे हमें क्या पता, तुम खुद बताओ. तो हमें पता है, इसलिए हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, विल यू एबल टू फ्रेम एन आंसर फॉर दैट. फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना सबने होगा इंडिया में. ठीक है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं भी चीजें अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हम देखें, अगर आपको अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है,
अगर आपको अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसमें कुछ गाइडलाइंस दी होती है ना कि बर्थडे पार्टी में क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या जरूरी होता है बर्थडे पार्टी में। बताओ क्या क्या जरूरी होता है बर्थडे पार्टी में, इंपॉर्टेंट चीजें। केक, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले जरूरी चीज होती है जिसका बर्थडे हो वो, है ना, सबसे जरूरी चीज। तो आप डिफाइन करेंगे बर्थडे किसका है, फिर बर्थडे के दिन कैसा है, कि मतलब क्या करना है, बर्थडे में क्या क्या चीजें होंगी, किस किस लोगों को इनवाइट करेंगे, उनको इनवाइट कैसे करेंगे, उनको क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, है ना, क्या पिलाएंगे खिलाएंगे, खिलाने में भी वेज होगा कि नॉन वेज होगा, लंच पे बुलाएंगे कि डिनर पे बुलाएंगे, या जो है आप ब्रंच पे बुलाएंगे। ये बेसिक गाइडलाइंस होती है। उसके बाद जो है चीजें डिसाइड होती, केक कौन सा आएगा, कितने केक आएंगे, कितने केजी के आएंगे, खाने में कितनी डिशेस होंगी, ये सब बाद में होता रहता है। ठीक है, ये सब चीजें बाद में होती हैं, लेकिन इनिशियल एक आउटलाइन सबको पता होती है। सिमिलरली सिमिलरली किसी भी कंट्री की, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें अगर आप कुछ कंडीशंस बनाएंगे तो लिमिट रह जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इस साल क्वेश्चन आया है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो अगर आपने एक आउटलाइन तैयार कर दी कि इस पार्टी में वेजिटेरियन फूड होगा और ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी, तो क्या आपकी पार्टी में जो आप चाहते हैं वो होने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है। और अगर आपने बोला कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड लेके आएंगे तो उनको हम अलाउ नहीं करेंगे, सो दैट मींस यू हैव फ्रेम्ड द गाइडलाइंस। तो सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टाइप of a law, a fundamental law on the basis of which all the governance takes place. तो आपने एक स्केलेटन बना के दिया है कि दिस इज व्हाट इज अलाउड एंड दिस इज व्हाट इज नॉट एट ऑल अलाउड। उसके अलावा यू कैन ब्रिंग सर्टेन चेंजेस थ्रू legislations. So it is the most fundamental law of the country on the basis of which all the other laws and legislations and the executions take place. It is the most fundamental law on the basis of which the others legislations and laws takes place. ठीक है, so the basic principles and laws of a nation, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it. It is the meaning of the constitution. It is the meaning of the constitution. Is it clear? It is the meaning of the constitution. Do we have any doubt in understanding what is the constitution? Do we have any doubt in understanding what is the constitution? आपको समझ में आया क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? अगर अब आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या आप समझा सकते हैं? यस, नो? वेरी गुड। बस यही, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं आपको दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए, क्या अगर हमसे कोई पूछता है तो कैन यू बी एक्सप्लेन दिस टू द अदर पर्सन और नॉट, दिस इज व्हाट शुड बी देयर इन आवर माइंड, दिस इज द ओनली थिंग दैट शुड बी देयर इन आवर माइंड। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ in the country on the basis of which everything else in the political system takes place. कि किसके पास कितनी पावर होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोवाइड। किसके पास कितनी पावर कितने साल के लिए होंगी, द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोवाइड। हु ऑल विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, that the constitution will provide। who all will be elected and who all will be appointed, that will be the part of the constitution। how the citizens and the role of the government will be there, whether there will be duties, whether there will be rights, that will be the part of constitution। how the public policy should be interfering and how much it should be interfering, क्या public policy आपको इतना interfere कर सकते हैं that you will be told how many children you can have in the family, क्या इतना interfere कर सकता है कोई आपकी personal life में? क्या इतना लाइफ में कर सकते? बिकॉज चाइना में देयर वाज अ वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी, कैन सच पॉलिसी बी देयर इन इंडिया? कैन सच पॉलिसी बी देयर इन इंडिया? ये बताइए, कैन सच पॉलिसी बी देयर इन इंडिया? नो, because in our country we have a constitution that says that there is right to life and personal liberty, and
deciding how many children you want to have, it is a part of your personal liberty. Deciding how to live is a part of your personal liberty and it is your right to life. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, ठीक है. Every citizen of the country should abide by the constitution. हाँ, every citizen of the country. देख abide नहीं है, देखिए आप समझिए. You may not agree, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्टली फॉलो नहीं करना होता. कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए देयर आर सर्टेन लॉज. देखिए जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखी हैं वो तो यू हैव टू अबाइड. until unless this is something which needs certain amendments, आपको अबाइड करना पड़ेगा. You may be indifferent to the constitution. The citizens of India, they are allowed to be indifferent to the constitution because we do not have 100% literacy, but you cannot show disloyalty towards the constitution. ठीक है, आपको नहीं पता है, आप या कुछ चीज ऐसी लगती है आपको कि आप you do not have proper understanding, तो आप डिसलॉयल नहीं हो सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं शो कर सकते हैं. ठीक है, अबाइड करना ना करना वो पार्लियामेंट के हाथ में है. लेजिस्लेचर अगर उस चीज पर लॉ बनाते हैं तो आपको अबाइड करना होगा. नहीं लॉ है तो यू कैन टेक फ्रीडम ऑन दैट. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ नेशनल ऑनर्स एक्ट है. एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टिंग आवर ट्राई कलर. लेकिन जरूरी ये तो नहीं है ना हर किसी को 15 अगस्त या 26 जनवरी पर ट्राई कलर अपने घर पे होस्ट करना है. कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इट इज टोटली अ फ्री सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड. क्लियर, समझ में आया? Yes, no? Let us understand what is the Constitution of India. What is the Constitution of India? What is the Constitution of India? बताइए, इतना समझा तो हम इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. That it is the supreme law. It is the supreme law of India which lays down the basic framework demarcating fundamental political code, structure, procedure and power and duties of the government institution and sets out fundamental rights, directive principles and duties of the citizens. मतलब एक supreme law है that lays down the framework demarcating fundamental political code, structures, procedures, duties of the government institutions of the government and sets out fundamental rights, directive principles and duties. That is the meaning of the Constitution of India. That is the meaning of the Constitution of India. Are we clear with this? क्या है Constitution of India? Are we clear with this? एक basic document है. ठीक है, अब थोड़ा सा background समझ लेते हैं. Let us understand the background of it. Aditi, you have a doubt? You have raised your hand. If you have a doubt, let me know. I'll unmute you. Yes, ठीक है. हाँ दीदी. Sir, how constitutions work? हाँ जी. How constitutions work? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे. पहले दिन सब बता देंगे, फिर बाकी क्लासेस में क्या करोगे. Okay, sir. है ना. अभी तो बता रहे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे काम करेगा, वो धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे. Okay. ठीक है, चलिए. Any other doubt you have? So let us understand the background of the Constitution. Let us understand the background. How Constitution was created, how Constitution was formed, how Constitution was framed. ठीक है, तो Constitution एक बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो भी तो बना होगा ना. ऐसा तो है नहीं कि कहीं से उत्पन्न हुआ हो. एक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, नेचर का लॉ तो नहीं है. Constitution is not a natural law, so it was formed, it was framed, and the framing of the Constitution forms an important part of our syllabus. Because do you know for civil servants it is like a holy book. यही है जिसके बेसिस पे आपको काम करना है, यही है जिसको आपको रिस्पेक्ट करना है, यही है जिसको आपको सेफगार्ड करना है, और यही है जो आपको सेफगार्ड करेगा. Constitution of India is something that will protect you and something that you have to protect. So you need to know how it was framed.
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, वी नो सम बेसिक बैकग्राउंड अबाउट अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑल्सो, दैट हाउ दे वर फॉर्म्ड, how they were framed, what was the perspective behind the framing of those religious texts. Similarly, for the civil service aspirants and for the civil servants and the people who are part of the government system and the people who are the citizen of India, for them the Constitution of India is the very sacred document, and when you find something very sacred you must know the background of it. Are we clear? So पहले देखिए, the question may come that which animal is represented on the seal of the Constituent Assembly, which document is represented or which symbol is represented on the seal of the Constituent Assembly. तो बताइए, आंसर आपको दिख ही रहा है, it is the elephant. And now you know why sometimes India is also called as the elephant. Sometimes in the international world, India is sometimes called as the elephant because it is the animal by which India is represented. The Constituent Assembly chose animal as a symbol. An elephant पे question भी आया इस साल. Now you understand why in UPSC the question came on elephant. Now you understand why there was so much of I would not use the word hue and cry because people were very concerned. Why the people were so much concerned when there were unfortunate incidents related to some elephants in Kerala? Why? Because we identify ourselves constitutionally with elephant. समझ में आया? So the seal of the Constituent Assembly, it has elephant on it. अब हमें समझना है Constituent Assembly क्या है? तो Constituent Assembly was a assembly that was based upon the provisions of the Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan, based upon the Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan has asked to form a Constituent Assembly. Cabinet Mission Plan has asked to form ये जो सिंबल है, आप अपनी तरफ से आप सेटिंग्स में आप चेंज करिए. हमारी तरफ से वीडियो स्क्रीन बंद है, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से उसको स्लाइड करके लेफ्ट राइट कर लीजिए, आपको सब दिखेगा आराम से सिंबल वगैरह. ठीक है, अपनी तरफ से आप लोग चेंज कर सकते हैं. अब दिख रहा है? अब वीडियो पैनल हमने बंद ही कर दिया है. इज इट नाउ क्लियरली विजिबल फॉर यू? ठीक है, चलिए. नाउ कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश हुई दैट फॉर द फर्स्ट टाइम सेट on 9th December 1946. 9th December 1946, which consisted of members that were indirectly elected. It consisted of members that were indirectly elected. And nominated. It means if a question comes that the members of Constituent Assembly were directly elected or indirectly elected, so you know that they were indirectly elected and also nominated. So if the question comes that they were indirectly elected only, then you also know that this is not the case. This is not the case because they were directly and indirectly elected both. Okay? Now this Constituent Assembly framed the Constitution. This Constituent Assembly framed the Constitution that was functional on the date that we'll be reading in the preamble. ठीक है, धीरे धीरे सस्पेंस बना रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे सस्पेंस बना रहे हैं. Let us understand the background also. The constitution making process was organized around the deliberation of the Constituent Assembly. The members of the Constituent Assembly were elected on a limited franchise. Limited franchise means only those people who were allowed to vote. It means in the Constituent Assembly there was no universal adult franchise. Universal adult franchise means those who are above 18 all are allowed to vote, or as per the original constitution those who are above 21 all are allowed to vote.
ऐसा नहीं था. The franchise was limited. It means those who were the members of the provincial legislative assembly, only those could vote. ठीक है. Now cabinet mission plan. Cabinet mission plan sets up the constituent assembly, which discarded full adult franchise for election to the constituent assembly and instead suggested for indirect elections by the members of recently elected provincial legislative assemblies. This I have already told you. Then how many members were there? How many members were there in the constituent assembly? There were 292 members that were elected. 292 members were elected. 93 members were from princely states that were nominated. 93 members were from the princely states that were nominated, and 4 members were from the chief commissioners provinces that were today that which we considered as the union territories. Such were provinces were there. उनको में से 4 members थे. Total membership of constituent assembly was 389 before partition. After partition, that number dropped to 299. That number dropped to 299. You do not need to remember the number of members. Do not worry, you do not need to remember the number of members because because UPSC does not ask you facts that much. बस आपको पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन है तो ये नहीं कि more than 500 थे. जब आपको पता होना चाहिए originally there were 389 and later on they were 299 members. ठीक है. Now Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad or Babu Rajendra Prasad was the first chairman of Constituent Assembly. Babu Rajendra Prasad was the first chairman of Constituent Assembly. ठीक है. And was he a nominated chairman or elected? So Babu Rajendra Prasad was a elected president. Babu Rajendra Prasad was a elected president. ये भी बहुत समझिएगा. He was a elected president. Is it clear? यहां तक समझ में आया हम लोगों को? आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत क्लियर है, सिंपल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. ठीक है. Now, who gave the idea of the Constituent Assembly for the first time? The first time the Constituent Assembly's idea was suggested by Mr. M.N. Roy. M.N. Roy is also the person who is considered the founder of the Communist Party of India. So he was a pioneer of communist movement or an advocate of radical democracy. This is not important for you in general studies, लेकिन अगर UPSC पूछ लेता तो फिर ही पता होना चाहिए. First official demand was through Indian National Congress, where C. Rajagopalachari demanded for a Constituent Assembly in 1939. In 1939, based on the adult franchise. So the demand was of the adult franchise, but what we got was limited franchise. What we got was limited franchise. This demand was accepted in 1940, but later on, actually the Constituent Assembly which came into place, that took place in 1946, and that was on the basis of the Cabinet Mission Plan. 1940s में अगस्त ऑफर भी आया था, क्रिप्स मिशन भी आया था, लेकिन what the Constituent Assembly was finally made on the basis of the Cabinet Mission Plan. Now, most of the deliberation in the Constituent Assembly was done by the drafting committee. There was a committee that was drafting the constitution. Okay? Who was the chairman of drafting committee? Who was the chairman of drafting committee? Who all must be aware about this? Who are the chairman of drafting committee? Yes, Dr. Ambedkar. Okay, Dr. Ambedkar was the chairman of drafting committee. Okay, Dr. Ambedkar was the chairman of drafting committee. Now, the decisions were not through consensus. देखिए हर एक basic word, हर word को importance देनी है. The decisions were not on the basis of consensus. Consensus मतलब सबकी हाँ नहीं होती थी. The decisions were on the basis of majority. So the decisions were through a majority vote. So there was voting in the Constituent Assembly. Just remember that. ये भी ध्यान रखना है that there was voting in the Constituent Assembly through a majority vote. For the first time, Constituent Assembly took place, or the first meeting took place on 9th of December 1946. And how much time it took to have the Constitution of India?
2 years 11 months and 18 days. 2 years 11 months and 18 days. No need to remember this time, but this date you need to remember. बहुत important है, बहुत important है. Now, how many days it took place for the to frame the constitution? It took place 165 days. देखिए टोटल टाइम तो था सिटिंग का, टोटल टाइम जो जितने दिन उन्होंने एक्चुअली काम किया था that was 165 days and took place 11 sessions. And finally on 26th of November our Constitution of India was ready. So 26th November we celebrate as the Constitution Day because that was the day on which our Constitution was ready. The year was 1949. Year was 1949 and it was enforced on 26 January 1950. It was enforced on 26th of January 1950. पहचान रहे हैं 26 January डेट पहचानते हैं क्या हुआ है उस दिन? Do you know 26th of January why it is important? 26th of January why it is important you all know? सुना है? ये मत बोलना कि हाँ उस दिन ड्राई डे होता है, हमको पता है, ठीक है, या उस दिन छुट्टी होती है. It is the Republic Day. 26 जनवरी इज अ रिपब्लिक डे. क्यों है वही बताएंगे आपको, वो बताएंगे अगली क्लास में. आप लोग भी ढूंढ के आना कि रिपब्लिक डे क्यों कहते हैं उसको, क्या है उस दिन. ठीक है, यहां तक समझ में आया? एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट टिल नाउ? Yes, you need to know about the acts. That will be asked in history. Acts से आएगा ही आएगा. Every year there is one question from acts. This year बहुत सिंपल आया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आया, ठीक है, लेकिन एजुकेशन से आना ही था. उसके लिए जब हिस्ट्री क्लासेस होंगी, हिस्ट्री की जब क्लासेस होंगी उसमें सब कवर हो जाएगा. हम लोगों ने ऐसे प्लान किया हुआ है दैट आई बिगिन पॉलिटी ऑन फ्रॉम द डे कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड. व्हाट वील बी रीडिंग? विल बी रीडिंग फ्रॉम 26 नवंबर 1949. And Vishal sir will be covering history. He'll be dealing with the political portion before 1949. जैसे एक्ट जो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या कैबिनेट मिशन प्लान, ऑगस्ट ऑफर एंड ये सब चीजें हिस्ट्री में कवर. ठीक है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है. लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, इसलिए लक्ष्मीकांत में फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट दैट. वो हिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें ज्यादा नहीं है. वो फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर से एक दिन पहले रटना ही पड़ेगा, कितना ही पढ़ लो, एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों को रटना ही पड़ेगा. इज इट क्लियर? I'm sorry. ठीक है, चलिए, shall we continue? Now there are certain committees of the constitution. Factual है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कम. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली had total 22 committees. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली it had 22 committees in which 8 were major committees, and rest were minor committees. ठीक है, तो the Constitution of India had 22 committees, 8 major, another were minor committees. Who was the constitutional advisor? Jurist B.N. Rao. Jurist B.N. Rao was the constitutional advisor. ठीक है, so it is not the Dr. Ambedkar, because generally we get confused. We believe that Dr. Ambedkar was the constitutional advisor, but it is not Dr. Ambedkar. It is Sir B.N. Rao. ठीक है. Now major committees. Drafting committee chairman was Dr. Ambedkar. Union Power Committee, Pandit Jawaharlal Nehru. Union Constitution Committee, Pandit Jawaharlal Nehru. Provincial Constitution Committee, Sardar Vallabhbhai Patel. Advisory Committee or the Fundamental Rights Committee of Minority and Tribal Committees and Excluded Areas, Sardar Vallabhbhai Patel. ठीक है, this committee had the following subcommittees. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है that was there any committee which had subcommittees also, that yes, it was the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas. It was presided by Sardar Vallabhbhai Patel. ठीक है, there were following subcommittees. कौन कौन सी subcommittees थी? Fundamental Rights Subcommittee by under Professor J.B. Kaplani.
माइनॉरिटी सब कमिटी अंडर HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया अंडर गोपीनाथ बोरदिलोई, एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज अंडर AV ठक्कर। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। या आई एम जस्ट गिविंग यू सो दैट आपको ये ना लगे कि बुक में दिया है हमें तो पढ़ाया नहीं, कमजोर कम पढ़ा रहे हैं, इसलिए बस दे रहे हैं सो दैट आपको ये ना लगे कि ये तो पढ़ाया नहीं, बुक में था। बस आपको जो बता रहे हैं वो याद करना है कि was there any committee which had subcommittee? Yes. Who was presiding the committee? Sardar Vallabhbhai Patel. And how many subcommittees were there? 4. This is what you need to remember. Other committee, Rules of Procedure Committee, Dr. Rajendra Prasad. States Committee, Pandit Nehru. Steering Committee, Dr. Rajendra Prasad. National Flag Ad Hoc Committee, Dr. Rajendra Prasad. Committee under the function of Constitution Assembly, G. Mavlankar. House Committee, Pitabi Sitaramaiya. Language Committee, M. Satyanarayan. Order of Business Committee, K. M. Munshi. So this is what is about the Constituent Assembly. उसके अलावा you need to know who was the calligrapher of the Constitution of India. You need to know who was the calligrapher of the Constitution of India. You know that? किसने लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2 लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। हैंड रिटन है, टाइप्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट टाइप्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज हैंड रिटन। आपको दिखा देते हैं, ये शायद आपने नहीं देखा होगा, तो आज आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी दिखा देते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, वैसे आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ओरिजिनल हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, यू आर लुकिंग समथिंग बिकॉज ऑफ विच वी आर एग्जिस्टिंग एज रिस्पेक्टेबल सिटीजंस। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेशनल एम्बलम, ठीक है, दिस इज द प्रीएम्बल, द फर्स्ट पेज। देखिए आप खुद नोटिस करिए, इट इज हैंड रिटन, इट इज हैंड रिटन, ठीक है। एंड हु वाज द कैलीग्राफर, ये क्वेश्चन आ जाता है। एनीवन हु नोज हु इज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Who was the calligrapher of the Constitution of India? प्रेम बिहारी रायजादा। Yes, प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। प्रेम बिहारी रायजादा was the calligrapher of the Constitution of India। ये फैक्ट्स हैं ये सब, लेकिन यूपीएससी में नहीं आते, एसएससी लेवल पर आते हैं। यूपीएससी में फैक्ट्स इतने नहीं आते, लेकिन पता होना चाहिए, बिकॉज गॉड फॉरबिड इफ अगर आपको लाइफ में कभी और एग्जाम्स भी देने हो, या फिर साथ साथ आप अगर यूपीएससी के साथ साथ और भी एग्जाम्स दे रहे हो, तो पॉलिटी में आपको ये सब भी थोड़ा बहुत हो जाए। हमारा फोकस सिर्फ लेकिन टोटल यूपीएससी रहेगा। जो थोड़ा बहुत हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने कभी दिया नहीं इसलिए हमें पता नहीं है, जो थोड़ा बहुत होता होगा वो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताते रहेंगे, एसएससी वाला भी, ठीक है, जो थोड़ा बहुत पता होगा। बट दिस विल बी टोटली फोकस्ड अपॉन यूपीएससी। आवर क्लासेस विल बी टोटली फोकस्ड अपॉन यूपीएससी, स्टेट भी नहीं, यूपीएससी पर ही। स्टेट में लेकिन यूपीएससी पढ़ोगे तो स्टेट के क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले तो निकाल ही लोगे आप बहुत आराम से। आर वी क्लियर? यस, नो? वेरी गुड। सो वी विल हैव टुडेज क्लास टिल दिस टॉपिक ओनली, बिकॉज हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बिगिन करेंगे, ठीक है। डू यू हैव एनी डाउट टिल नाउ? नो डाउट्स, ठीक है। ऑल योर डाउट्स आर वेलकम, ठीक है, ऑल योर डाउट्स आर वेलकम। किसी को भी कोई और डाउट हो तो आप पूछते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, and from Monday 10 a.m. we'll be continuing with our classes. Those who have enrolled, they have got the schedule and they are also the part of the group itself. Those who haven't enrolled yet, they can contact the numbers provided by the institution and get themselves enrolled, because this ये हमने ही बोला था टीम को कि आप एक ओपन लेक्चर रखिए, so that the students, because not everyone is aware about me or not everyone is aware about the institution, तो first lecture है, so that they can have an idea that quality of content that we will be providing, ठीक है। You rest assured, this is my responsibility, not the responsibility of the institution also, this is my responsibility। मैं अपने नाम पे बोल रहा हूँ that your syllabus will be covered in the best possible manner, ठीक है। This is my responsibility that within these 45 days or अगर ऐसा लगता है कि we need more classes, I will be giving more classes also, ठीक है, क्योंकि this responsibility is in my name that Indian polity and governance for 2021 or 22 will be covered in the best possible manner. Is it clear? तो आप लोग
बस टेंशन फ्री रहना और 2 वर्ड्स याद रखना. कौन से वर्ड्स? ट्रस्ट एंड पेशेंस. ट्रस्ट एंड पेशेंस. ठीक है, कुछ हो ना हो समझ में आया ना, हंसाएंगे बहुत क्लासेस में, ये ध्यान रखना. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे.